With this lecture, we are starting with a question practice series. So this is for course Intermediate Microeconomics. This is a semester 3 paper. It is offered in Econers. It is also offered in BA program, major and minor. This level of numericals might not be that important for BA program, but when we talk of Econers, so this level of numericals are very important. So last semester we did a whole course. This semester, we are doing a question practice series. If you want to avail the full course, that is also available. The link for that is in the description box of the video. So let's start with the numericals. So as we know that we are following variant. Now, when we talk of variant, there is this variant workbook as well. And there are questions at the back of the variant as well. Apart from that, there are some things that need to be practiced to be done with the course, that need to be practiced to be well versed with the papers, with the due final semester paper. And also if you are someone who has to prepare for PG exams or is willing to go for an MA, so this question practice will also help you for that, apart from scoring good in the main paper. So this is your numericals that we discuss on. So this is from chapter number 3 and 4 of variant. So let's start. So these are some examples of the utility function. You can see 3x plus y, root x, y, then root x plus y. These are some examples of the utility function. To know more about the utility functions, you will first basically need a theoretical and a you'll basically need to go through the entire course as well, right? So if you have done the variant and now you want to do the question practice, this series and this video is for you. So now what there does the question say that there are certain utility functions. You have to find the MRS for those utility function. And then you also have to comment if the MRS is diminishing, increasing, constant. And you also have to tell that what would be the shape of the IC for all the utility functions that are given to you. Before we start this lecture series and before we start the question practice, as you can see, there is a utility function like this. There are many utility functions. We will be using this formula for MRS throughout to find the MRS. Now, from where is this formula actually coming? So I'll go into a short derivative to let you know from where is this formula coming. You can directly mug the formula for practicing questions, but it is always good to know that from where is the formula coming, because if there is a slight tweak in the formula, for example, kuch tweak hai, or tab you don't have to really think that how to go about it. Why? Because you know the derivation. So even if you don't mug the derivation, it's a good idea to have a look. देखो अब हमारा जो utility function है, यहाँ पर एक argument है utility, second argument is x1, the third argument is x2. So there are three arguments. लेकिन हमें पता है जब हम IC की बात करते हैं तो utility को हम constant मानते हैं. So now what we will do is we will take the first derivative of this utility function सबसे पहले. तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा du, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी. देन जब यहाँ पर हम देखते हैं दो आर्ग्यूमेंट्स है x1 और x1, तो इसका सबसे पहले पार्शियल आएगा डेल f बाय डेल x1, partial derivative of this function with respect to x1, then dx1 is basically total differentiation. तो यानी कि इसका मीनिंग ये है कि अगर x1 चेंज होता है तो यूटिलिटी कितने से चेंज होगा, इनटू x1 चेंज कितना होता है. जरूरी तो नहीं है कि x1 लैम्डा अमाउंट से चेंज होगा या एप्सिलॉन अमाउंट से चेंज होगा, कितना x1 में चेंज है. एंड दिस सेकंड टर्म, दिस शोज द चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड दिस इज योर चेंज इन x2. नाउ अब हमें पता है अलोंग एन आइसोक्वांट du हमारा कांस्टेंट रहता है, राइट? बाकी सब चीजें सेम है. अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली टर्म है इसको यहाँ लेके चले जाएंगे. When we do that, so we have this equation. And now what you do is you can see इस वाली साइड हमारा dx2 है, इस वाली साइड हमारा dx1 है. You have to simply find this thing. When you find this, you see that this is minus of del f by del x1 upon del f by del x2. ये जो ऊपर वाला टर्म है, this is nothing but
अगर मैं x1 बढ़ाऊंगी तो उससे मेरी यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी, दैट मीन्स दिस इज mu ऑफ x1 एंड जो नीचे वाली टर्म है दैट इज mu ऑफ x2 एंड प्लीज नोट यहाँ पर एक माइनस है। तो ये जो हमारे पास आया dx2 by dx1 दिस इज स्लोप ऑफ IC, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव डिराइव्ड, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, पर ये कहाँ से आ रहा है, इफ यू वांट टू नो दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर। बट नाउ थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक हमने एक MRS डिफाइन करा है, और MRS को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC। और नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC वन ऑफ द रीजन इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये वाला जो टर्म है हमारा स्लोप जो है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग IC होगा तो नेगेटिव आएगा ये वाला पोर्शन। तो जब मैं MRS इसका नेगेटिव लेती हूँ तो ये यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर MRS दैट आई विल रिपीटेडली यूज, इसको स्टार बोल देते हैं, ठीक है। नाउ वन थिंग टू नोट, ये मैथमेटिकल चीज है प्रॉपरली, कि जब भी किसी भी चीज का स्लोप जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जब भी किसी का स्लोप नेगेटिव होता है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज प्योर मैथ्स, राइट। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ MRS इज द नेगेटिव ऑफ द स्लोप, तो यानी कि किसी भी चीज का अगर MRS मेरा नेगेटिव आ रहा है तो IC अपवर्ड स्लोपिंग है, किसी भी चीज का मेरा जो MRS है अगर यूटिलिटी फंक्शन का पॉजिटिव आ रहा है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ इट इज द नेगेटिव ऑफ द स्लोप। तो यहाँ पर मैथ से हमने ये इसका इकोनॉमिक्स डिराइव कर लिया। I use maths to derive the economics. So we will use all these concepts to solve our question. Now let's come to the question practice. If you are well versed with the formulas that we discussed, if you are well versed with the maths behind it, we can directly start from this. अब ये देखो, ये हमें एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है। इस वीडियो में आई एम नॉट डिस्कसिंग ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या क्या है, फॉर दैट यू नीड द फुल लेक्चर वीडियोस। MRS का ये जो फॉर्मूला है अभी हमने स्टार में डिराइव करा है, राइट। सो यू यूज द स्टार फॉर्मूला MUX upon MUY, that is derivative of utility function with respect to x, derivative of utility function with respect to y in the denominator। तो अगर हम यहाँ पर MUX फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, MUY 1 आ जाएगा। So you get the MRS as 3 in this। अब हम ये देखते हैं कि MRS जो है कांस्टेंट है, ठीक है। Now we know one thing, जब हमने बोला MRS इज द नेगेटिव ऑफ द स्लोप इस स्टार के हिसाब से, तो अगर मुझे यहाँ पर इसका स्लोप निकालना है इस यूटिलिटी फंक्शन का, dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ MRS, तो स्लोप क्या होगा -3। तो जब किसी भी चीज का स्लोप नेगेटिव है तो वो कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अभी हमने इसका इकोनॉमिक्स निकाला था कि किसी भी चीज का अगर MRS ग्रेटर देन 0 है तो वो कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी तक हमने इसके कंसेप्ट में किया था। अब बात ये है कि यहाँ पर जो MRS है इसका जो साइन है उससे पता लगता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है। साइन तो यहाँ पर देखो इसका पॉजिटिव ही है MRS का, तो यानी ये जो IC है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तब इसलिए भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट नाउ व्हाट अबाउट द कर्वेचर, देखो अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग इज वन थिंग, कर्वेचर इज डिफरेंट। कर्वेचर मतलब उसकी शेप कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, स्ट्रेट लाइन है। अगर MRS हमारा कांस्टेंट है तो हमारे जो ICs हैं दे आर स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज योर MRS इज कांस्टेंट, यानी कि MRS x बढ़ने से y चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज द शेप ऑफ योर यूटिलिटी फंक्शन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन। यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा है dy by dx हमारा नेगेटिव है, तो दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। MRS पॉजिटिव है तो अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग, और यहाँ पर MU जो है हमारे वो पॉजिटिव आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट्स लुक इनटू this example. Again, we have this formula, right? So let's find the MUX. MUX कैसे? Utility function को with respect to x we will differentiate. We differentiate, we get this. Again, your MUX is positive. कोई भी अगर good है हमारा, good है, bad नहीं है, तो उसका MUX positive आएगा। MUY is also positive. It's a good. अब MRS का फॉर्मूला क्या है? MUX अपॉन MUY। तो आप इन दोनों का रेशियो लोगे, so you get y by x, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हम देखते हैं दैट हमारा जो MRS है दैट इज पॉजिटिव। अब रेफर टू द, जब हमारा MRS पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग IC होते हैं, ठीक है। इसका स्लोप भी निकाल लेते हैं,
इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एमआरएस। ये भी लेस देन 0 है, तो यहाँ पर अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी होगा। देखो एमआरएस के साइन से सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग पता लग रहा है, अभी तक कर्वेचर नहीं पता लगा। अब पहले वाले केस में क्या था, स्लोप कांस्टेंट था, बट इस वाले केस में स्लोप इज डिपेंडिंग ऑन वाई एंड एक्स। तो देखते हैं कि एमआरएस इस केस में डिमिनिशिंग है या नहीं है। देखो अगर इसमें मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा दूंगी, राइट, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में बढ़ेगी तो मेरी जो एमआरएस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इन दिस केस योर एमआरएस इज डिमिनिशिंग। और जब भी हमारा एमआरएस डिमिनिशिंग होता है, हमारा जो आईसी होता है, आईसीज आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सो हाउ डू डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स आईसीज लुक लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल व्हिच इज दिस। इट इज वेरी वेल देयर इन द वेरिएंट एज वेल। एमयूएक्स निकालेंगे, अगेन पॉजिटिव आ रहा है, ये निकाल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने स्टार में डिराइव करा था, यू गेट द एमआरएस। इस गुड की एक बात है कि एमआरएस इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एक्स नॉट ऑन वाई। इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस से यू कैन चेक क्वाजी लीनियर। अगेन इफ यू वांट द फुल डिटेल ऑफ व्हाट आर क्वाजी लीनियर प्रेफरेंसेस, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। नाउ इस केस में एक बात तो पता लग गई कि एमआरएस अगर पॉजिटिव है तो आईसीज क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका dy बाय dx निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ एमआरएस है, ये नेगेटिव है, तो यानी अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी है। अब कर्वेचर क्या होगा, कन्वेक्स होंगे कॉनकेव होंगे। तो यहाँ पर कर्वेचर चेक करने के लिए अगर मेरा एक्स बढ़ेगा तो मेरा फिर से डिनोमिनेटर में माई एमआरएस विल फॉल, सो इन दिस केस अगेन एमआरएस इज डिमिनिशिंग। ये चेक करने के लिए मैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एमआरएस की नहीं चेक करी, ऑल आई एम सीइंग इज एक्स बढ़ रहा है तो एमआरएस कम हो रहा है, तो आईसीज आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन इस केस में वर्टिकल ट्रांसलेट्स होते हैं, you can check variant for why they are vertical translates. Now let's move to the next part. Now this part is little tricky. Why it is little tricky, because here you have y as a bad, y is a bad, x is a good. So let's find mu x। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So when you differentiate it with respect to x, this is what you will get, x upon this। तो हम ये देखते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि mu x अगर पॉजिटिव है तो ये तो एक गुड है। लेकिन जब आप mu y कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी गुड y इज अ बैड कमोडिटी। अब अगेन एमआरएस के फॉर्मूले में लगाएंगे mu x अपॉन mu y। हमारा एमआरएस क्या आ गया इस केस में, माइनस एक्स बाय वाई। अब देखो ये पहला केस है जहां पर हमारा जो एमआरएस है वो क्या है, आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अभी तक हमारा जितना भी एमआरएस आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है इसमें, dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव ऑफ दिस, ये पॉजिटिव आ रहा है। हमें पता है जब भी हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो यानी जो कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये पहला आईसी है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, और वो क्यों है, क्योंकि इसमें वन ऑफ द गुड इज अ बैड एंड अदर इज अ बैड। अदर थिंग टू वेरीफाई, इसमें देखो तुम्हारा एमआरएस क्या है, नेगेटिव है। हमने रूल पढ़ा था, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। To remind you, let me show you the rule once again. See, look into the rule. ये मैथ्स वाला रूल और कैसे ये इकोनॉमिक्स में ट्रांसलेट होता है स्टार यूज करके। हैव अ लुक, टेक 2 minutes. लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सेकंड चीज है कि हमें ये तो पता लग गया कि इसमें जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन कॉन्वेक्स होगा या कर्व कॉनकेव। अभी तक हमने जो कॉन्वेक्सिटी और कनकेविटी के लिए रूल यूज करा है कि अब हम क्या करा था, एक्स बढ़ा के देखा था एमआरएस बढ़ रहा है या घट रहा है। पर अभी तक जो एक स्पेशल चीज थी, हमारा एमआरएस पॉजिटिव आ रहा था तो चीजें आसान थी। बट अभी ये फर्स्ट केस है जहां पर एमआरएस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कनकेविटी और कन्वेक्सिटी यूज करने के का अलग तरीका यूज करेंगे। जब भी वन ऑफ द गुड और बैड्स आर इन्वॉल्व, यू कैनॉट
check that technique to verify. ठीक है, तो वो टेक्निक जब हम x बढ़ाकर देख रहे हैं वो तब वैलिड है जब तुम्हारा mu x भी पॉजिटिव है, mu y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें कोई भी कर्व का कर्वेचर देखना होता है तो हम क्या चेक करते हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में कुछ एक समरी पहले देख लेते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव में हम क्या चेक करते हैं। देखो ये मैथ्स का रूल है अगेन, कि जब ये नेगेटिव होता है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉनकेव, ये जब हमारा पॉजिटिव होता है सेकेंड डेरिवेटिव तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये जब हमारा जीरो होता है तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब once I do this, what you can also do is, जो हमने दूसरे टेक्निक से करा है, x बढ़ाकर करा है, तुम ये सारे उनका डबल डेरिवेटिव निकाल के भी क्रॉस चेक कर रहे हो, कर सकते हो कि जब हमने कन्वेक्स आईसी प्रूफ करा तो क्या ये कंडीशन हो रही है या नहीं। सो एज अ होमवर्क यू कैन डू दैट, बट फॉर दिस फंक्शन आई विल डू दैट। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस। नाउ हियर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड बोथ आर वेरिएबल्स। तो जब दो वेरिएबल्स हैं और मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, what I do is I try to convert it first in a single variable. So what do I do is, my utility function is given as this. I find y in terms of x. अब हमें पता है ये जो slope है, this is along an IC and u is constant along an IC. So now you have the value of y here. So let me put the value of y from this utility to this. Now all I have done is I have put the value of y here. Y को यहाँ से निकाला था यूटिलिटी फंक्शन से, इसका y स्क्वायर है, इसका रूट निकाल लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस यू बार का स्क्वायर का हाफ। सो दिस इज द वैल्यू। नाउ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। अब पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में है, सिर्फ x की फॉर्म में है। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगी। When I double differentiate the function, it is simple differentiation. Please try that. You will see that after differentiating, your double derivative will come out to be negative in this case. You take 2 minutes and you can just go through the derivative. I have done that. I will also share these notes with you. So this is coming out to be less than 0. अब हमें पता है as a rule, जब double derivative हमारा negative होता है तो function की shape क्या होती है, concave. तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आया था, हमारा जो एमआरएस है वो नेगेटिव आया था, और हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया था। सो इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव फंक्शन। दिस लुक्स लाइक दिस। तो हमारा ये जो आईसी है, this looks like this. As a homework you will tell me that utility यहाँ बढ़ेगी या यहाँ बढ़ेगी। So think about it. यहाँ पर this is your good and this is your bad. Right? So this is how your utility functions shape like. Now, next thing is, as a homework, please try this दूसरा method to find the curvature of perfect substitutes, to find the curvature of all the curves we have done till now. Next question, यहाँ पर हमारा utility function ये given है, ठीक है। Again इसका MUX निकालेंगे, you will find the MUX to be greater than 0. MUY निकाला, वो भी greater than 0 है। MRS कैसे निकाला, फॉर्मूले में पुट कर दिया, MUX अपॉन MUY, राइट। फॉर्मूला में पुट करा तो हमारे पास ये MRS की वैल्यू का क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। वेट, लेट अस डू दिस। MRS का फॉर्मूला क्या है, MUX अपॉन MUY। सो MUX की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये वाला अपॉन दिस, जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास MRS आ गया। सो जब MRS आ गया, अब हमें पता है dy/dx क्या है, माइनस ऑफ MRS। सो दैट इज माइनस ऑफ दिस। तो जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, हमारा MRS पॉजिटिव है, तो कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी तक कर्वेचर नहीं पता। अब देखो, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और दोनों x और y गुड्स हैं, तो मैं सिंपल अपना वो पुराना मेथड यूज करूंगी। अगर मेरा x बड़ा डिनोमिनेटर में तो मेरा MRS कम हो, तो यानी मेरा MRS जो है वो डिमिनिशिंग है। तो जब हमारा MRS डिमिनिशिंग होता है तो व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व्स,
downward sloping, convex to the origin. Please, in this case, find this. This should come out to be positive in this case. Please cross check and let me know in the comment section. Next, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है. नाउ वी हैव डन एम्पल टाइम्स. ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है. एमआरएस जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव. जब एमआरएस पॉजिटिव है तो dy by dx इज द नेगेटिव ऑफ एमआरएस विच इज नेगेटिव. तो हमारा dy by dx अगर नेगेटिव है तो कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जब अब क्या करेंगे? जब हमारा x बढ़ेगा तो हमारा एमआरएस इस केस में कम हो रहा है, तो अगेन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, well behaved preferences, and everything is satisfied for this curve as well. So the only exception was when one of the good was a bad, we could not use this method. But you please be friendly of doing the other method as well. What is the other method? Finding this. And iske rules I have just told you. One more question. This is the utility function. Find MUX and MUY. You will have X and Y. So if you see MRS is positive, that means curve is downward sloping. But when you increase X, MRS increases. So that means it is concave, not convex. MRS is increasing. It's a concave utility function and extremes are preferred over averages. The theory part is done in the full lecture course. So that was all the question practice. For practice, please don't forget that you have min functions as well to draw ICs for. You have max functions as well, and so on. So you can have ample number of functions for which you will be asked to draw the utility functions. We'll do more of them when we do the choice chapter. So that was all.